Ladies and gentlemen, a very good afternoon and a warm welcome to this third match of the day between Selden Blasters versus Cowboys. It is the clash between the green and the red. Justice to be precise, what I'm talking about is Satyajit has been brought into the bowling attack. He's a tall, hefty, very strong with arms. So when he bats clean striking, that he was hitting this ball so nicely with the pure timing. He's an all-rounder performer, Satyajit. He opens the bowling attack, he opens the batting for the team. He's an all-rounder performer, immensely talented cricketer for Zeldin Blasters. Here comes the first ball of the third match. Shot of length, and the batsman had enough time in the world to play that in the deep square leg region. And that's gone for a boundary, beautifully put away. The shot of length gave an advantage to the batsman, otherwise the ball was a good line, was been maintained by Satyajit. However, Satyajit will learn from this mistake. And this match has been shown live on YouTube through the broadcasters Goa Livecast, doing a fantastic job as well. The team of Nikhil is always very professional in their work. Oh, big swing. This is a much better line and much better delivery. What a comeback here from Satyajit. He's a very quick learner and he rectifies the mistake very quickly. So that rectification, what we saw just in this delivery, what it was a shot of length, and Rupesh had the ample time in the world to put it away, the deep square leg, and now just slightly fuller on length. Footwork here once again, and the ball has been blasted against the Zeldin Blaster for a boundary. What a good timing once again from Rupesh, sending the ball this time again to the fence. It wasn't a bad delivery at all, but the footwork was amazing of Rupesh. He came down the track and was in a good position to dispatch that delivery. Oh, the ball is up and it will be clearing the boundary marked. Yes, it is. Up and over, coming right out from the middle of the bat and going the distance. It's a biggie from Rupesh. And what a quick fire here. The runs are rising up. The graph is shooting up. And the score moves up to 14 runs. Thank you, DJ. So what a start here been provided by Rupesh, and he's definitely blasting his ways out and going after Satyajit. Already scored 14 runs. Well bowled, right on the money. There is no LBW before in this tournament. If it was, there would have been the curtains down for sure for Rupesh. And keeping that in mind, he played that cross shot. However, it's a leg by single to take the score to 15. The Krishna, hero of the last match, who contributed 25 runs of just 9 deliveries. How will treat this first delivery? It's a dot ball to mark the end of the very first over. It's 15 for no loss. Over.
Thank you, DJ. What a high voltage drama this is. The two talented teams are battling against each other. Both the teams have one win under their belt. Cowboys versus Zeldam Blasters. Blasters won the toss and decided to bowl first after the completion of 1 over. Score is 15 for the loss of no wickets so far. All the wickets are in hand, and a good start has been provided definitely by Rupesh. Viresh, the hero of the last match, has a job to do in this match as he's up against the champions team, Cowboys of Bali. Oh, change of pace, brilliant from Viresh. Waited for that ball and quickly converting that single into two. After that, slip, a skid from the fielder, lost his balance completely. And what a batting from Pratesh, definitely trying to just speed up the run flow for the team Cowboys. Oh, looking for the glory shot. A little bit of a fumble there from the wicket keeper, which has allowed them a single. We'll have to wait for the umpire signaling what it is. It's a wide and a run. So 2 runs. So these 2 runs take the score up to 19 runs. So this is the second over which is in progress, but Krishna is still not shown any delivery to the fence. Well, he might try in this over. Good footwork. Wanted to reach the ball on the half volley and wanted to play the ball with the full face of the bat in between. Long off and long on, but missed it completely. And luckily the ball missed the stumps as well. Now who's hitting whom? We'll have to wait and watch if the bat is hitting the ball or the ball is hitting the stumps. It's definitely bad. The ball is up and it will be safe. It will be safe for sure. The ball is landing in no man's zone. And 2 runs to start off with Krishna. Now once Krishna has that ability, he's got that quality. Once he gets the judgment right, well, he has been batted so nicely in the very first over, contributed 25 runs out of just 9 deliveries that he faced. But he knows how the pitch is behaving and he has the judgment in his mind. It will be just a matter of time. When he swings big, it will be biggie. There you go. That is exactly what I was talking about. Krishna, the Chris of Cowboys. So this big hit in the deep mid-wicket region takes the score to 27 runs. What a clinical strike that was, trying to just break the rhythm of the batsman. This is one tactic what the bowler has. But now this delivery will decide who's going to break the rhythm of whom. Whether the bowler will break the rhythm of the batsman or Krishna will break the rhythm of Viresh. It's definitely Krishna. The ball is once again up and over the fences for another biggie coming from the bat of Krishna, the Chris of Cowboys. And look at the IQ of our DJ as the team of commandos come to rescue the soldiers. It is the Krishna who is the rescuer for Cowboys.
Oh, lovely shot that has to travel and beautiful fielding that time. The deep square leg region. He played straight to the field. The Pratesh wanted two, but it's just one. Viresh isn't happy at all with the two biggies coming in this over. Completion of 2 overs. It's 34 for no loss. Thank you, DJ. So they have taken the batting power play as the signal comes out from Aslam Sheikh. The very first over 15 runs came up from Satyajit bowling, and now Viresh's delivery, it was 19 runs. So what a good improvisation from Krishna. And as rightly guessed by me, he will try few of those. Definitely has put two out of the park easily, and that is the area once again he's looking. Ye dil mange more, the ad of Pepsi. तो तीसरी ओवर की शुरुआत जो कि होने जा रही है, और कृष्णा हर कोने में अपनी नज़र दौड़ाते हुए, तो देखना होगा कि इस ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा। ये पहली गेंद, बैटिंग पावर प्ले, सफल हुए और सुंदर शॉट के साथ गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। निश्चित तौर पर ये एक नज़ाकत भरा शॉट और बिल्कुल एक सुंदर टाइमिंग के साथ खेल दिया था डीप स्क्वायर की दिशा में। 4 रन। और इस सुंदर शॉट के साथ इसको जा पहुंचाए 38 रनों पर। तो पहली गेंद पर चौका, स्वैग से स्वागत। खेलना चाहा इस बार, मगर यहां पर अंपायर अपनी बाहें खोल दी है शाहरुख खान की तरह, और वाइड का इशारा उनकी ओर से आया। तो बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के मुताबिक बल्लेबाजी होती हुई, और क्या ही सुंदर बल्लेबाजी। पहले ओवर में 15 रन लगभग आए और प्रतेश के बल्ले से निकले काफी सारे रन। और उसके बाद फिर से एक बार सुंदर शॉट के साथ गैप में खेल दिया है 4 रनों के लिए। जब कृष्णा लय में आते हैं तो निश्चित तौर पर गेंदबाजों के लिए प्रलय कर देते हैं। तो दूसरी ओवर में भी जमकर बल्लेबाजी की और तीसरी ओवर में भी लगातार रन बरसे। अभी अभी होली गई है और वो गाना मेरे जहन में है, रंग बरसे भीगे चुनरिया नी रंग बरसे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर काफी सारे रन बरसते हुए, और कृष्णा शायद फिर से एक बार एक अच्छी बल्लेबाजी के दम पर मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे शायद। इस बार पूरी तरह से मिस टाइमिंग कर दिया और खामियाजा भुगता। खेलना चाह रहे थे मगर मिस क्यू शॉट खेलकर अपना विकेट खोया, मगर बेहतरीन बल्लेबाजी निश्चित तौर पर की। तो ये पहला विकेट जो कि गिरता हुआ काउ बॉयज पर, और स्कोर अपना निजी स्कोर 23 रन बनाकर आउट हुए कृष्णा, और टीम का स्कोर पहुंचा है 42 रनों पर। पहला विकेट।
चेक, टेस्ट चेक, टेस्ट चेक, माइक टेस्टिंग। तो बिल्कुल एक बेहतरीन हेयर कट दी है कृष्णा ने। तो मुझे उनसे उस बाबर के बारे में पूछना है कि किस पार्लर से उन्होंने हेयर कट कराई है। तो मेरे भी बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, तो काउबॉयज कट लेना ज़रूरी इस गर्मी में। तो फिलहाल रुपेश उतरे हैं मैदान पर, ये तीसरी ओवर जो कि प्रगति पर। गेंद हवा में, एक बार यहाँ पर कैच का मौका, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, शॉट लेग की दिशा में, और ये थोड़ी सी जगलिंग के बाद आखिरकार कैच ले लिया है। तो इस प्रकार से अब लगातार विकेटें गिर रही हैं और प्रतेश रुपेश आउट होकर चलते बिना बिना खाता खोले। टेस्ट चेक, माइक टेस्ट, टेस्ट माइक। तो रुपेश भी काफी जल्दी से लौटे। तो दूसरा विकेट जो कि गिरा काउबॉयज का, और स्कोर वहीं पे रुका हुआ 42 रनों पर 30। अब चौथे नंबर पर उतरे मैदान पर स्वप्नेश वेलिप, एक बेहतरीन खिलाड़ी काउबॉयज के। पहले गेंद पर कड़ा प्रहार, और 6 रनों के लिए खेल दिया है प्रतेश ने। तो सुंदर टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रनों के लिए। तो दर्शकों को बताता चलूं कि स्टार बॉयज द्वारा आयोजित ये छठा ऑल गोवा म्यूनिसिपैलिटी पंचायत टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का सुंदर आगाज हुआ है। आज का दिन यानी कि दूसरा दिन, कल के दिन पुनाजी कलंगुटकर की टीम पहुंची है क्वार्टर फाइनल्स में, और देखना होगा कि आज के दिन कौन सी टीम पहुंचती है क्वार्टर फाइनल्स में। यानी कि 4 दिनों में 4 टीमें पहुंचेंगी क्वार्टर फाइनल्स में। आखिरी दिन होगा सेमीफाइनल्स और फाइनल का मुकाबला। खेलना चाह रहे थे इस बार आउट, और इस बार प्रतेश खेलना चाह रहे थे, फाइन एज लगा और बिल्कुल एक सुंदर कैच ले ली विकेट कीपर ने। इस प्रकार से तीसरा विकेट, यानी कि काफी जल्दी अब विकेटें गिरती हुई काउबॉयज के। टेस्ट, तो बाली गांव कह लो या फिर सिटी, बिल्कुल एक बेहतरीन टीम जो कि काउबॉयज बाली से आती हुई। तो काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी इस टीम में, काउबॉयज की टीम में, और कभी कभार पीएफसी बाली के नाम से भी खेलते हैं ये। तो स्कोर 48 पर जा पहुंचा है। तो अब तक 3 विकेटें गिरी हैं और स्कोर पहुंचा है 48 पर। स्वप्नेश जो कि स्ट्राइक पर, और अभी अभी जुड़े हैं रुपेश वेलिप।
पहली गेंद पर सुंदर शॉट, गेंद को भेज दिया है। बिल्कुल आवाज सुन सकते हैं आप एसएजी बिल्डिंग के छत पर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो हल्के हाथों से खेल दिया कवच की दिशा में, 2 रनों का यहाँ पर प्रयास रहेगा। एक मौका है बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का और सुंदर रनिंग के साथ 3 रन ले लिए हैं और शायद चौथे रन के लिए भी दौड़ेंगे तो 4 रन दौड़ कर निकाले हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। और सुबह के मैच में 3 रन दौड़े थे तो उनका रिकॉर्ड तोड़कर स्वप्नेश ने 4 रनों के लिए दौड़ा है। तो केवल बाउंड्री को, गेंद को बाउंड्री के पार लेकर 4 रन नहीं ले जाते, दौड़ के भी ले जा सकते हैं। और क्रिकेट के इतिहास में एक गेंद ऐसी थी कि जाकर अटकी थी दरख्त पर और 21 रन दौड़कर निकाले थे, तो वो भी हुआ था। तो खेलना का प्रयास किया था मगर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद के कारण अपनी बाहें फैला दी संजय नायक ने और वाइड का इशारा आया। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 59 पर स्कोर का आंकड़ा काउबॉयज जो कि बल्लेबाजी करते हुए। रिवर्स का प्रयोग, सुंदर टाइमिंग, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग के साथ थ्रो किया मगर 1 रन से नहीं रोकेंगे। इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 60 रनों पर और ओवर की समाप्ति अभी होने में थोड़ी गेंदें बाकी है, यानी कि ये 5वीं ओवर जो कि प्रगति पर और उसके बाद आखिरी ओवर आनी शेष। तो अब कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल बढ़िया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हमेशा फायदेमंद सौदा साबित होता है बल्लेबाजों के लिए और उतना ही मुश्किल दे फील्डरों के लिए। इसी बीच हेलीकॉप्टर का एक शॉट देखने को मिला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया था रुपेश ने मगर सुंदर फील्डिंग के कारण केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को। सेल्डम रुक जाइए डीजे साहब, सेल्डम ब्लास्टर्स की सुंदर फील्डिंग होती हुई है, तो देखना होगा कि इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचाए 61 रनों पर। फुलटॉस गेंद, फिर से एक बार रिवर्स का प्रयोग, 2 रन आसानी के साथ मिल सकते हैं मगर कोशिश नहीं की, कहा कि रुक जाओ क्योंकि आखिरी गेंद थी, तो उसी के कारण शायद स्वप्नेश थोड़े से थक गए हैं। एक पुलिसकर्मी है, लॉकडाउन में जमकर बल्लेबाजी की थी स्वप्नेश ने भी और दौड़ा दौड़ा कर पीटा था लॉकडाउन तोड़ने वालों को। साइड चेंज कर ये गेंदबाजी और इस डॉट गेंद के साथ 5वीं ओवर समाप्त होती हुई और स्कोर वहीं पे रुका हुआ 62 रन, माफी चाहूंगा स्कोर ने कहा 62 रन 62। ओवर की समाप्ति हुई 5वीं, 62 रन, विकेट गिरे हैं अब तक 3। अंपायर ने कहा फिर से एक बार ओवर। थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ स्कोरर की ओर से, उन्होंने कहा कि 63 है रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अब मैदान पर उतरे हैं, माफी चाहूंगा 4 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 63 हुआ है स्कोर और मैदान पर उतरे हैं अब प्रीतम।
शाहीन गेंद पहली गेंद पर वाइड, और इस अतिरिक्त के साथ इसको जा पहुंचा है 64 रनों पर। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है निश्चित तौर पर स्कोर 80 के आसपास होना चाहिए, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रोजेक्टेड स्कोर। जिस गति से रन बन रहे हैं बिल्कुल काबिल तारीफ काउबॉयज के। और इस प्रकार का शॉट लगाने में माहिर, जिन्हें ये उनका ट्रेडमार्क शॉट है, बिल्कुल जिस प्रकार से यह बल्ला घुमा और टाइमिंग जितनी सुंदर हुई, निश्चित तौर पर यही दर्शाता है कि ये एक दिग्गज खिलाड़ी है स्वप्नेश वेलिप। और कैसे तैसे अपनी ड्यूटी को एडजस्ट कर मैदान में उतरे हैं, तो बिल्कुल एक योद्धा खिलाड़ी स्वप्नेश। ओ फिर से एक बार सुंदर शॉट, पकड़ बनाई मजबूत और गेंद को दे मारा है बिल्कुल नेट्स के अंदर 6 रनों के लिए। दैट्स अ 6। देखिए डीजे, तो मेरा अनुमान बिल्कुल गलत, क्योंकि जिस प्रकार से आप गियर बदल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसको जा पहुंचा है 76 रन। बिल्कुल 100 के आसपास होना चाहिए स्कोर। कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार उसी अंदाज में गेंद को खेल दिया है बिल्डिंग के छत पर 6 रनों के लिए। लगातार तीसरा छक्का जो कि निकलता हुआ स्वप्नेश वेलिप के बल्ले से। दैट्स अनदर 6। थैंक यू डीजे। लगता है युवराज सिंह और किरण पोलार्ड के अंदाज में आए हैं। फिर से एक बार देखिए सुंदर शॉट है, ये लगा चौथा सिक्सर, सिक्सर नंबर 4। तो वीरेश जैसे एक बेहतरीन गेंदबाज को 4 गेंदों में 4 छक्के, बिल्कुल पुनाजी कलंगुटकर को अगर कोई बल्लेबाज टक्कर दे सकता है तो निश्चित तौर पर स्वप्नेश वेलिप। जिस अंदाज से वे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल रिदम भूल गए हैं वीरेश। आखिरी 2 गेंदें, ये 5वीं गेंद। और ये सुंदर फील्डिंग डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। तो हम सब जानते हैं कि युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं, किरण पोलार्ड ने लगाए हैं। मगर क्या आप ऐसे बल्लेबाज को जानते हैं जो 6 गेंदों में 6 चौके लगाए हैं? तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि श्रीलंका के बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैटिंग सेंसेशन सनद जयसूर्या ने 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे। पटकी गेंद सुंदर गेंद के साथ वो अपसे की, और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 5वीं, और स्कोर जा पहुंचा है 89 पर, और विकेट गिरी है 4। डीजे तो आखिरी यह ओवर तो देखना होगा कि स्वप्नेश किस अंदाज में अब आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करेंगे। तो स्कोर जा पहुंचा है 89। 11 रन क्या
निकाल पाएंगे पहली गेंद पर। फिर से एक बार उसी अंदाज से दे मारा है 6 रनों के लिए और स्कोर को पहुंचाया 95 रनों पर। बिल्कुल, दे चौका दे छक्का। थैंक यू डीजे। तो छक्के की बौछार और कल के दिन हाई स्कोर था 100 रन। फिर से एक बार सुंदर शॉट मार, वहां पर फील्डर की मौजूदगी केवल 1 रन जो कि मिलेगा, स्कोर को पहुंचाया 96 रनों पर। अभी भी बाकी है 4 गेंदे और अगर 4 गेंदों में 4 रन बनाते हैं तो कल के दिन का रिकॉर्ड तोड़ेगी टीम काउबॉयज, क्योंकि कल हाईएस्ट था 99 और 100 रन जीतने के लिए चाहिए थे कल के दिन में। मगर लगता है आज काउबॉयज एक नया इतिहास रचेगी इस टूर्नामेंट में। हल्के हाथों से खेल दिया इस बार और 97 3 गेंदें बची हैं। तो स्वप्नेश जैसे ही आए तो सभी दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि एक दो लंबे छक्के तो निश्चित तौर पर लगेंगे और 100 रन पूरी कर जाएगी काउबॉयज। बिल्कुल सुंदर गेंद। देखिए यही अद्भुत नज़ारा है क्रिकेट मैच का। कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम और कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से उम्मीद की गई थी लगभग 11 रन आसानी के साथ बनेंगे, जिस प्रकार से तेजी दिखाई थी स्वप्नेश ने, अब 100 रन पूरे इस छक्के की मदद से इसको जा पहुंचा है 103। आजा मौसम है रंगीन। तो बिल्कुल सेकंड लास्ट गेंद पर एक छक्का लगाकर स्कोर को पहुंचाया 103 रनों पर और आखिरी गेंद बाकी। तो लगता है लक्ष्य 110 का होना चाहिए, ये उम्मीद कर रहे होंगे दर्शक। फिलहाल हल्के हाथों से खेल दिया और गेंद को पहुंचाया 4 रनों के लिए, इसको जब पहुंचाया 107 108 जीतने के लिए चाहिए। सेल्डम ब्लास्टर्स के पास मौका है, क्या ब्लास्टर्स ब्लास्ट कर पहुंचेंगे 108 रनों पर या फिर रोकने में कामयाब रहेंगे अपनी अच्छी गेंदबाजी क्रम पे काउबॉयज। इसी बीच अंपायर गाइड्स टाइम एंड ओवर और अगले अपडेट्स आपको सुनाई देंगे। मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी को कमेंटेटर जो अक्सर कहते हैं ओ हो उड़ा दिया।
धन्यवाद सभी का हार्दिक स्वागत मैच के दरमियान। काउबॉयज टीम ने क्या बैटिंग मैदान पर देखने को मिला आज उनकी। 107 रन बनाए और 108 रन। और सबसे बेहतरीन बैटिंग मैदान पर आज सपने शवेज जिन्होंने 53 नॉट आउट की एक लाजवाब बैटिंग, और उसके साथ कृष्णा ने भी आज बेहतरीन कार्य किया। तीनों ओपनर्स ने बहुत खूबसूरत, एक मात्र जीरो पर खिलाड़ी लौटा उसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि 107 रन जब आपके पास हो ना, और 108 का सवाल, वो सवाल का जवाब थोड़ा सा महंगा रहेगा मैदान में। ओके चलिए, प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर जिस टीम के पास में उतनी धुरंधर बल्लेबाजी है, 108 रनों का जब पीछा करना तो शुरुआत कौन सी होनी चाहिए। हमेशा स्कोरिंग पर अपने स्कोरर है साइश नाइक, स्वागत है सर आपका इस बीच मतलब आज के और दूसरे दिन पर। और क्या आपने स्कोरिंग संभाली, 108 रनों का सवाल वो खड़ा हो गया मैदान पर। आपको सुबह से लेकर जो कि अच्छे मैचेस लगभग 60 तक सबसे टोटल अच्छा था आज के दिन पर, लेकिन इसके बाद 108 एकदम से एम्बुलेंस नंबर है ये। एक जबरदस्त कहानी क्रिकेट की। दो अच्छी टीम है काउबॉयज टीम के पास। शुरुआत में उन्होंने बात की थी, जब बात करते हो उनके पास अच्छी बॉलिंग है। ओके हम पर हम रेडी है। स्ट्राइक सत्यजीत और नॉन स्ट्राइक करेंगे इमरान मैदान पर। कपिल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, जर्सी नंबर 5 पहनकर। एक अच्छा माहौल है, 108 रन जो कि पीछा करना, पहाड़ खोदना पड़ेगा आज मैदान में। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, एक सुंदर शॉट मैदान पर, कवर्ड बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट 4 रन के लिए। और इसी के साथ आगाज मैदान पर इस पहली गेंद पर 108 रनों का सवाल, उस सवाल का पहली गेंद पर एक जवाब दे दिया, पॉइंट के बगल, कवर के बगल से इनको कट मारा, बेहतरीन से शॉट मैदान पर। लेजर क्रिकेट से भी मैं कहूंगा इतना अच्छा शॉट आपको आज टेनिस में देखने को मिलता हुआ, सिर्फ कारपेट के सहारे उस शॉट को खेला गया था। लेजर में अमन बहुत अच्छा शॉट देखते ही। ओह, ऑफ स्टंप के फिर से बाहर, शॉट के लिए जगह बांधने का प्रयास किया, वहां पर रन नहीं मिलेंगे। और सोच सही कि हर गेंद पर अब ताबड़तोड़ बैटिंग। जो 53 रनों की बैटिंग देखने को मिला, उसके वजह से ये टोटल बन चुका है, और उसी के अंदाज में आज वो बैटिंग करनी पड़ेगी। ओ, स्वीप किया गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन फिलहाल दर्शक बनेंगे। 2 चौवे निकले इस ओवर में। एक अच्छी बैटिंग, एक अच्छी सोच मैदान पर। अब 100 रन की आवश्यकता अंतिम 33 गेंदों पर। एक अच्छा मैच, एक कड़क मुकाबला मैदान पर। ओ, चेंज ऑफ पेस किया, गति में परिवर्तन, वहां पर विकेट कीपर के पीछे, विकेट कीपर है तो काम अच्छा कर, रन वहां पर नहीं लेंगे। और ये कह रहे हैं कि शुरुआत के पहले ओवर में वो 15 देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अंतिम 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट मारने पड़ेंगे। टोटल 8 बन चुका है, 16-17 रन प्रति ओवर आपको बनाने पड़ेंगे मैदान पर जिससे पीछे। ओ, चेंज ऑफ पेस क्या, फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, वहां पर गेंद की लाइन से चुकी, और कपिल की अच्छी बॉलिंग। 108 रन आपने बनाया, उसका रक्षण भी उतना करना पड़ेगा आपको, और सामने टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रति ओवर 15 के आसपास तो पहले पहुंचनी पड़ेगी बल्लेबाजी। ओह, क्या लाइन है ये, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को अंदर की तरफ आते हुए, और पहला ओवर समाप्त, सिर्फ 8 रन बन चुके 2 चौकों की वजह से।
और इस बार बेहतरीन शॉट, हवा में गेंद, एक अच्छा मौका और ये आउट मैदान पर। लॉन्ग ऑन पर विकेट निकला, पहला एक विकेट के नुकसान के बाद 8 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। एक अच्छा मैच, एक अच्छा मुकाबला, लेकिन 108 रन, एक मानसिक दबाव मैदान पर, और उस दबाव को आज झेलना पड़ेगा। लगभग प्रति ओवर 20 रन बनाने हैं मैदान में, तो हर ओवर में लगभग 3 छक्के। और ऑन सेट पर मोड़ा गया इनको, शॉर्ट मिड विकेट पर सर, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और ये आउट मैदान पर। हर दूसरा विकेट निकला। ओके डीजे, डीजे आप देखिए मैच को, आपकी नजर होनी चाहिए अच्छी मैच में। ओह, चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, और जितनी डॉट गेंदे जाएगी ना वो प्रेशर बनेगा मैदान में। ओह, बढ़िया, बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, लेकिन थोड़ा सा लाइन बाहर रखा, वाइड का इशारा, एक रन निकला। वाइड के साथ थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन शायद तब मैं तो कहूंगा हर ओवर में आपको 20 बनाने पड़ेंगे। तो अटैक इज बेस्ट डिफेंस, सबसे कम बेहतरीन, आप सामने वाले पर टूट पड़िए। ओ, मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, कैच को छोड़ते हुए, कैच को छोड़ते हुए शायद तो दो खिलाड़ियों के बिल में थोड़ी सी, दिल के दो खिलाड़ियों के बीच में जो थोड़ा सा तालमेल था ना, वो गलत था। 9 नंबर की जर्सी वाला बता रहा था कि भाई उनका कैच है, लेकिन मिड विकेट से 6 नंबर जर्सी वाला पहुंचा वहां पर, आवश्यकता नहीं थी उस वक्त। लेकिन चलिए, खेल में क्या छूटा, उसका प्रेशर उतना नहीं मैदान पर है उस कैच का, पता क्या रन महंगा था। ओ, फिर से मिस टाइम गेंद, स्करलेग के ऊपर से, स्करलेग खिलाड़ी मौजूद है, अरे आराम से उस कैच को लेंगे, और ये आउट। ओके डीजे, धन्यवाद। एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा खेल मैदान पर, 108 रन का पीछा करते हुए सिर्फ रन गति मैदान पर एक धीमी पहुंच चुके 10 पर, और डॉट गेंद, और समाप्त हो चुका है दूसरा, 2 और समाप्त, लगभग 10 रन मैदान पर।
ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बहुत खूबसूरत लाइन। वापस खेल मैदान पर, बहुत खूबसूरत मॉल। ओ टाइमिंग खराब है, हवा में गेंद, मिड़ा पर मौका, आउट। धन्यवाद डीजे, बेहतरीन सॉन्ग, एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग आपने लगाया। सॉन्ग की अहमियत क्या है आज आपको पता चलेगी। ये बल्लेबाजी करेंगे मैदान में, एक बिल्कुल हर हर वक्त खेल अलग रहेगा। ओ शॉट गेंद ऑन साइड पर, लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर निकली गेंद, बाउंड्री लाइन के 4 रन के लिए। काफी देर के बाद ये हुआ। ओके डीजे, एक अच्छा खेल, एक अच्छा माहौल, चाहने वालों की वो तौबा कर दी। और शॉट गेंद फिर उसी अंदाज में, उसी जगह पर लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के ऊपर से निकले बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक दूसरा चौवा। पहले ओवर में 2 चौवे निकले, उसके बाद ये तीसरा ओवर है जहां पर 2 चौवे निकले। लेकिन मेहरबा मैं कहूंगा थोड़ी सी आप देर कर बैठे। ये शॉट पहले 1 ओवर में आना था, 2 ओवर में। लेकिन चलिए, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, लगभग रन गति बहुत दूर है मैदान में, और आज उस रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक अच्छी बैटिंग, 108 रन का वो मानसिक दबाव, उसको आप पार करना पड़ेगा मैदान पर। ओह बेहतरीन लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के बाहर, यहां से तो बताना आसान नहीं रहता कभी कभी। लेकिन एक अच्छी वापसी मैदान में गेंदबाज की, 2 बाउंड्रीज के बाद तो क्या वापसी की उस वक्त। ओ क्या शॉट है ये, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। ओके धन्यवाद डीजे। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है मैदान में, जबकि इस वक्त 24 पर 108 रन बनाने हैं मैदान में। तो 3 ओवर पहले समाप्त हो चुके। 18 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और 18 गेंदों में जीत से पीछे। 84 रन बनाने पड़ेंगे। और वो गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज के रूप में, ओह बढ़िया गेंद वहां पर, बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान में, और नॉस्टे के खिलाड़ी दौड़ चुके हैं और ये आउट हो जाएंगे। दूसरा विकेट रन आउट का। धन्यवाद डीजे। कपिल वापस रहेंगे मोर्चे पर। ओ रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया वहां पर। अब चित विचित्र शॉट, क्योंकि अब पता है कि यहां से रन गति बहुत दूर की है, लगभग 12 छक्के मारने पड़ेंगे आपको अंतिम। अगर देखा जाए तो इस वक्त गेंदें बची है लगभग 16। ओह डॉट गेंद, कपिल की अच्छी बॉलिंग, क्या बॉलिंग मैदान पर कपिल ने। पहला और लगभग 8 रन का कोई विकेट नहीं, दूसरे ओवर की गेंद पर रन आउट का विकेट निकला, और खेल बिल्कुल बदल गया मैदान पर।
एक तरफा ये निर्णय मैं कहूंगा इस मुकाबले का भी हुआ। ओहो, मेहरबान शॉट तो लगा लेकिन खिलाड़ी मौजूद है और ये आउट। 5 विकेट निकल चुके हैं मैदान पर, एक छठा विकेट निकला मैदान पर। 6 विकेट नुकसान के बाद टीम पहुंची 108 का पीछा करती है इस वक्त इस मैच में कुल मिलाकर 24 पर। कहानी बिल्कुल लाजवाब। इस स्तर पर इस अंदाज में कपिल की क्या वापसी, क्या बॉलिंग इस खिलाड़ी की। ओ बढ़िया क्रिकेट वहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी, कवर पॉइंट के खिलाड़ी को मार उठा, जो कि उसको भेजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधे हाथों में निकली है। अब यहां से तो पता चल चुका है उनको कि यहां से तो जीतना बहुत मुश्किल रहेगा। लगभग 12 छक्के मारने अंतिम 12, 13, 14 गेंदों पर, जो कि काम आसान नहीं रहेगा। ओ फिर से डॉट गेंद निकली, हालांकि एक रन निकलेगा। एक सिंगल निकलकर अपने हाथों में स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे मैदान में, तो बिल्कुल अभी तक खेल बनता हुआ शायद और चलता हुआ। इस ओवर में चौथा, इसके बाद एक आध गेंद बची है मैदान पर, मतलब कुछ ना कुछ हाल अलग सा अंदाज रहेगा। और संभली और समाप्त हो चुके हैं। स्ट्राइक रखिए अपने हाथों में, अंतिम 12 गेंदें और लगभग 12 छक्के मारने ही पड़ेंगे। राम वॉरियर्स और पूरब क्रिकेटर्स दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। राम वॉरियर्स और पूरब क्रिकेटर्स दोनों कप्तान। सिर्फ 12 गेंदे बचे। ओ फुल टॉस गेंद, सीधे फील्डर वहां तक मौजूद, लेकिन रन बनेंगे बाउंड्री के बाहर। गेंद 4 रन के लिए, चौवे के साथ बात नहीं बनेगी। प्रीतम जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर मेहरबान, देर हो गई इन शॉटों के। 5 चौवे अभी तक इसी में लग चुके हैं और 5 चौवे और 1 छक्का, ये लेखा जोखा इस खेल का। ओके डीजे, खेल बिल्कुल बदल गया और लेग स्टंप पर ये गेंद थोड़ी सी बाहर, वाइट का इशारा। अब अतिरिक्त करने की क्या आवश्यकता है, अब सामने गेंद डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात का, क्योंकि बल्लेबाजों को भी ध्यान में आ चुका है कि उनके लिए ये मौका आसान नहीं बैटिंग करना। 108 का पीछा करते हुए अभी भी जिससे पीछे बहुत है रन, 30 पर पहुंचा है मैच में टोटल, अभी भी काफी रन। ओ इस बार क्या है, बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए। ये छठी बाउंड्री इस इनिंग की, लेकिन मेहरबा बाउंड्री मारने के बाद भी मैं कहूंगा देर हो गई। एक अच्छा माहौल, दोपहर का समय इस मैदान पर, अर्धउदय या धूप मैदान में। और फिर से ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, क्या फील्डिंग वहां पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट के सर्कल के अंदर। शायद अब वो नाम था कपिल का, कपिल जो कि जर्सी नंबर 5 पहनकर, एक अच्छी फील्डिंग मैदान पर। डॉट गेंदे वो प्रेशर डालेगी। ओ मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद, मिड ऑफ के खिलाड़ी के लिए मौका, आउट। शायद थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि इस वक्त विकेट ज्यादा निकल चुके हैं। विकेट और एक निकला मैदान पर, क्योंकि विकेट हाथों में कम बचे, रन गति बहुत ज्यादा बचे। अब सिर्फ नाम के लिए 8 हजारी भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त रन कितने भी बनाए आप वहां से जीत नहीं सकते। आउट होके जा चुके खिलाड़ी और नए खिलाड़ी के रूप में। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए, लेकिन मेहरबान देर हो गई शॉट की।
टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा 41 पर। तो देवा डीजे अंतिम 6 गेंदें बची हैं मैदान पर और गेंदबाजी में कौन रहेगा? ओह, बेहतरीन बॉलिंग, कट मारने का प्रयास किया था लेकिन वो प्रयास राम। मंजू मोर्चे पर रहेंगे, 5 गेंदें डालनी पड़ेगी इस वक्त। वो बल्ले पर लगी है लेकिन उस बात का ईशांत, जो कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशांत गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। 4 गेंदें डालनी बची है, सिर्फ औपचारिकता बची है मैच में। ओ, क्लीन बोल्ड किया वहां पर, मंजू आउट। ओके डीजे, शायद थोड़ा सा प्रेशर मैदान में। ओ, आते ही बड़ा शॉट निकला मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। फोर्टी-एट। स्टार बॉयज आयोजित प्रतियोगिता 2021 का ये पड़ाव मैदान में, और दूसरी बार हवा में शॉट, फील्डर मौजूद है, एक आसान सा मौका और ये आउट। अब नया खिलाड़ी मोर्चे पर रहेगा नॉन स्ट्राइक पर, जैसे नंबर 07। शायद कहीं ना कहीं ये प्रेशर है मैदान में। ओ, बढ़िया शॉट, ऑफ ड्राइव का, हवा में रखा गेंद को और गेंद लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हो रही है। हालांकि इनिंग समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद दोनों टीमों के लिए, खासकर इस वक्त जो कि आज अच्छी बैटिंग की सामने से उस खिलाड़ी ने 53 रनों की एक लाजवाब बैटिंग। स्वप्नेश विलिप जो कि एक अच्छी बैटिंग, 53 रनों की एक लाजवाब बैटिंग, मैन ऑफ द मैच का दावेदार बनता हुआ।